welcome to my YouTube channel, and in this lecture we are going to discuss about some important definitions which are related to the transport in plants. Clear? So the first definition, that is called as osmotic pressure. We had discussed about osmosis. What is the process of osmosis? Osmosis means the movement of solvent particles from its higher concentration to lower concentration across a semi-permeable membrane till it reaches to the equilibrium. ठीक है, इसके बारे में हमने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? Osmotic pressure. Osmotic pressure is basically the pressure which is applied by a solution to prevent the inward movement of solvent particles. Clear? This osmotic pressure ना basically osmosis में होता क्या है? Solvent particles, and in these cases the solvent is always water. ठीक है, तो हम वाटर भी बोल सकते हैं और सॉल्वेंट भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट. सो इट इज द प्रेशर, it is the pressure which is applied by a solution to prevent inward flow of solvent or water. It is denoted by pi. ठीक है, इसे हम पाई से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल. सो द सेकंड डेफिनेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल. Now, what is osmotic potential? Osmotic potential is the potential of water to move from a hypotonic to hypertonic solution. We know that in terms of solution, the movement of water particles is going to take place from hypotonic to hypertonic solution, because in hypotonic solution solvent concentration is more in comparison to hypertonic solution. So here osmotic potential is the potential of water to move from the potential of water to move from hypotonic to hypertonic solution. Okay? So this is the potential of water which is required to move from hypotonic to hypertonic solution, and it is denoted as solute potential. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? Solute potential, and it is represented by psi s. This is called as solute potential. Clear? The value of pi is always positive. So its value is always positive, and the value of psi s is always negative. Clear? This is always negative. Next one is the important term that is called as wilting. Third important term is called as wilting, which is also related to the water availability. If the water availability is less, then
wilting can cause, or if the evaporation or transpiration is more. When wilting is caused, this is caused when the water availability is less. Water availability is less, or the transpiration or evaporation is less, or evaporation is more, not less, is more. ना विल्टिंग मीन्स होता क्या है? विल्टिंग मीन्स होता है मुरझाना ना। आप देखते हो जब वाटर की स्कार्सिटी होती है ना, वाटर बहुत कम होता है तो प्लांट की लीव्स मुरझाना स्टार्ट कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज विल्टिंग। क्लियर? और यदि समर सीजन का टाइम है और समर सीजन में बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन लीव से हो रहा है, देन ऑल्सो द विल्टिंग ऑफ लीव्स इज गेटिंग टेक्स प्लेस। क्लियर? दिस विल्टिंग मे बी ऑफ 3 types. Clear? So 3 types of wilting is, first is called as incipient wilting. So here I am writing the types of wilting. First type of wilting क्या होगी? Incipient wilting. First one is incipient wilting. What happens in incipient wilting? इंसिपिएंट विल्टिंग जो है ये बेसिकली नोटिस नहीं की जा सकती ना। इट मीन्स प्लांट से वाटर लॉस तो हो रहा है बट इट कैन नॉट बी नोटिसेबल ना। बाहर से देखने पे, आउटसाइड से हमें क्या करेंगे, हम इसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। सो इट इज नॉट सीन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, बाहर से देखने पर हम इसको नोटिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस के बारे में। व्हेन द सेल इज गेटिंग प्लाज्मोलाइज्ड, व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस हियर? दिस इज द सेल। जब ये सेल प्लाज्मोलाइज होती है तो इसका जो वैक्यूल है इट गेट्स स्मॉलर एंड द साइटोप्लाज्म इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन द वन साइड। दिस सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। मींस यहां से वाटर लॉस तो हुआ है, लेकिन ये वाटर लॉस इतना नहीं है कि हम इसको बाहर से नोटिस कर सके। सेल से वाटर लॉस हो रहा है, लेकिन सेल से वाटर लॉस का अमाउंट क्या है? कम है। इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, तो बाहर से हम इसको फील नहीं कर सकते या बाहर से हम इसको नोटिस नहीं कर सकते। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू मोर एक्सोस्मोसिस। ठीक है, जब बहुत ज्यादा एक्सोस्मोसिस होगा, सो दिस इज कॉज्ड ड्यू टू मोर एक्सोस्मोसिस। ज्यादा एक्सोस्मोसिस होगा तो हमारे पास इंसिपिएंट विल्टिंग कॉज होगी। द सेकेंड टाइप ऑफ विल्टिंग इज कॉल्ड एज टेम्पररी विल्टिंग। सो द सेकेंड टाइप इज टेम्पररी विल्टिंग। what is takes place in the temporary wilting? टेम्पररी विल्टिंग में भी क्या है? वाटर लॉस तो हो रहा है, इसको हम बाहर से फील भी कर सकते हैं, बट इट कैन बी रिटेन्ड अगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द वाटर सप्लाई इज प्रॉपर। सपोज दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ लीफ। ठीक है, यहाँ पर प्लांट में एक लीफ लगी हुई है। इस पौधे को हमने 2 दिन से पानी नहीं दिया। 2 दिन से पानी नहीं दिया तो क्या होगा? इसकी लीव्स जो है वो विल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस लीव गेट्स श्रिंकन, और ये नीचे की साइड इस तरह से बिल्ट हो जाएगी ना। इसकी जो बाउंड्रीज है वो भी हमें इस तरह से थोड़ी रिंकल्स दिखने लग जाएंगी। बट जब हम इस पानी को, इस प्लांट को वाटरिंग करेंगे तो दोबारा से ये लीफ जो है वो एंडोस्मोसिस करेगी, और एंडोस्मोसिस करने से दोबारा से अपना ओरिजिनल शेप रिटेन कर लेती है। दिस इज अ टेम्पररी विल्टिंग। इसमें ऐसा नहीं है कि ये लीफ जो है वो श्रिंक हो जाएगी देन इसके बाद में फॉल ऑफ हो जाएगी। दिस इज नॉट टेकिंग प्लेस इन दिस टाइप ऑफ विल्टिंग। In this type of wilting, only the leaf gets shrunken, and when the water supply is proper, then it again will regain its original shape. ठीक है, तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। This type of wilting is called as temporary wilting. The third type of wilting, which is called as permanent wilting, and this wilting can be clearly seen from the outside.
परमानेंट विल्टिंग जो है इसको हम क्लियरली बाहर से देख सकते हैं, आउटसाइड क्लियरली हमें सीन होगी। और यहाँ पर वाटर सप्लाई यदि हमने ज्यादा कर भी दिया है तो भी इसको हम क्योर नहीं कर सकते। ना दिस विल कॉजेज द ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। सो इन दिस केस द लीफ ड्रूप विल टेक्स प्लेस, सो इट विल कॉजेज ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। इट मीन्स मैक्सिमम वाटर इस लीव से बाहर निकल जाता है, एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होती है। और ये परमानेंट विल्टिंग जो होती है दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ना, एक बार में ऐसा नहीं होता है ना। जब भी कोई प्लांट है आप देखते हो प्लांट एक दिन में ड्राई नहीं हो जाता है। प्लांट के ड्राइंग की या विल्टिंग की जो प्रोसेस है इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। पहले इंसिपिएंट विल्टिंग होगी, देन टेम्पररी विल्टिंग, देन परमानेंट विल्टिंग ना। ये दोनों क्योरेबल है, यदि वाटर सप्लाई प्रॉपर की जाएगी तो प्लांट को हम फिर से क्योर कर सकते हैं, विल्टिंग को हम रोक सकते हैं। परमानेंट विल्टिंग कैन नॉट बी स्टॉप्स and it will causes the drooping of leaves when the amount of water percentage of soil clear, यदि soil में water percentage बहुत कम है तो उस केस में भी हमारे पास परमानेंट विल्टिंग जो है वो हो सकती है। क्लियर, तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप की विल्टिंग हमने देखी, कुछ डेफिनेशंस लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर एंड osmotic potential. Clear? In our next lecture we will discuss about the very important topic of the chapter, that is absorption of water. So never miss that. Thank you very much.